Today we are going to see uniform circummotion first. Circummotion. In that first we are going to see the uniform circummotion in day-to-day life. You can give me the example. Have you seen circummotion, particularly uniform circummotion? Can you give me some examples of that? Speed should be constant, right? Object should move on the circumference of the circle with the constant speed. Or do you observe the uniform circummotion in day-to-day life? Come सर on. फैन घूमता है तो Okay, fan in fact is rotational motion, and particles of the fan are performing circummotion. Rotational motion is the combination of circummotions. So particles of the fan are performing circummotion. Okay. Another examples. Electron revolving in the around the nucleus, moon revolving around the earth and moon system going around the sun, but it is slightly elliptical path, not exactly circular. Thoda elliptical hai. Anyway, there are other examples. You can give. What about other examples? Enough? Okay. So in this, we are in this. So far, we have seen displacement, velocity, acceleration. Now, things will be converting into angular displacement, angular velocity, angular acceleration, and so on. Because circummotion makes the angle at center. Right? Suppose particle goes from here, P to P dash. So it makes some angle at the center. It's 2 radii will make the angle. So we will have now terms, angular terms. For example, angular displacement, it is nothing but a plane angle only. It is the ratio of arc and radius. Suppose P dash is the arc ds and radius is r. Ratio of both is called angular displacement, and unit radian. Plane angle, its unit will be radian. Direction will be from the right hand rule. Keep your fingers on the circumference. Thumb will be indicating. Right hand ki fingers circumference pe rakhiye, thumb will go up. Anti-clockwise it will go up. Clockwise going down. So it is axial vector. An axial vector we call it, along the axis. So direction is from right hand rule. In one revolution, displacement is 0, but angular displacement will be how much? Displacement will be 0, but angular displacement will be 2 pi radian. डिग्री में नहीं बोलेंगे, रेडियन में ही. ऐसा यूनिट रेडियन है. Will write in the radian. All right. So angular displacement is nothing but a plane angle, and arc upon radius, and in one evolution displacement will be 0, but angular displacement will be 2 pi. ठीक है, angle 2 pi बनेगा center में. If particle goes around one round, so it will be 2 pi radian. Clear यहाँ तक? No problem. And No, uniform circummotion में speed will be constant. So uniform circummotion, the speed is constant, but velocity is not constant because velocity की direction change हो रही है, like this, है ना? तो यहाँ पर जो velocity होती है, we call it linear velocity. Circummotion में velocity is called linear velocity, and since velocity is changing, there will be acceleration. Even in uniform circummotion में direction change हो रही है ना, so it is accelerated motion. Acceleration in this case is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration we call it. Circummotion के लिए centripetal acceleration, which will be directed towards center always, and whose job will be to change the direction of moving particle. Centripetal acceleration होगा even if speed is constant, but velocity changes. Centripetal acceleration. And
other acceleration will also be there, angular acceleration also there, है ना, tangential acceleration भी होगा इसमें, we can have 3 acceleration, है ना, and vector sum of 2 acceleration will be called total acceleration. So we are going to see so many things, but first uniform circummotion, then non-uniform. तो यहाँ तक हो गया. नाउ circummotion में और कौन से टर्म हो सकते हैं? कैन यू प्रिडिक्ट? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. तो पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं ना. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का आइडिया है कुछ? Number of revolutions per second. या नंबर ऑफ साइकिल्स और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, है ना. तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं. लेट्स सी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू है, लाइक दिस. ऐसे v को थोड़ा बेंड कर दो, बट वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंसी का सिंबल है बिकॉज v एंड न्यू both looks alike, so we sometimes we get confused. So I will be using symbol f throughout, even if NCERT book symbol is new, we call it new. Okay. So it is frequency is nothing but a number of cycles per second or in 1 second. 1 second mein how many cycles it is completing? It may complete 1 cycle, 2 cycle, 1.5 cycle, even half cycle or quarter cycle, depending upon how fast it goes. है ना? Electrons will complete hundreds of thousands of cycles, millions of cycles in 1 second around the nucleus. It is quite a fast. Electron is quite a fast around the nucleus, you know. काफी fast है, उसकी frequency निकाल सकते हैं. But we need some more information. Then only we can find out the frequency. देखो, तो 1 साइकिल में कितने रिवोल्यूशन होंगे? तो फार्मूला क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी का? नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टोटल टाइम. पर साइकिल जब दिखते हैं ना, तो उसमें टोटल टाइम नीचे आ जाता है. तो 1 साइकिल का आई मीन इन 1 सेकेंड वी गेट द नंबर ऑफ साइकिल्स. अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दो ऐसा यूनिट में, तो 1 सेकेंड के नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाएंगे, है ना. तो फार्मूला ऐसा बनेगा. Now, unit of frequency is what? ऐसा unit of frequency is what? बोलिए, frequency का ऐसा unit क्या होगा? Revolution per second. Hertz होता है. साइंटिस्ट के नाम से ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज. HZ. फुल नेम अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखना है ना. हेनरी हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है. ऐसा यूनिट, उसके रिस्पेक्ट में यूनिट दिया गया. अदरवाइज we can also write revolution per second, and sometimes RPM is also written, but RPM is not the SI unit. RPM is not the SI unit. Let me make some space here. एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. Just let me see. Okay, this we don't need it at this moment. ठीक है. So let me have some space. Yeah. तो ऐसा यूनिट वी आर राइटिंग रिवोल्यूशन पर सेकेंड और हर्ट्स. ठीक है. नाउ समटाइम्स आरपीएम दिया होता है. यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने मैनुअल कोई टू व्हीलर का या कार का मैनुअल उठाते हैं तो उसमें दिया होता है दिस मच टॉर्क और दिस मच पावर एट 3000 आरपीएम, है ना. अपनी गाड़ियों का जो मैनुअल होता है ना, आरपीएम दिया होता है. बट आरपीएम इज व्हाट? आरपीएम इज नॉट ऐसा यूनिट. आरपीएम भी यूनिट है. आरपीएम तो आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट. रोटेशन पर मिनट है ना. तो मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स. तो आरपीएम को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हर्ट्ज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आरपीएम बाई 60 विल बी इक्वल टू हर्ट्ज.
60 से डिवाइड कर दो तो रिवॉल्यूशंस और रोटेशन पर सेकंड आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी. RPM divided by 60 is hertz. Clear? Got it? जैसे अगर मैं बोलूं फैन इज रोटेटिंग एट 1200 RPM, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. आगे है क्वेश्चन 3000 RPM. अपनी डू यू नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, डोमेस्टिक AC सप्लाई, जो घर में हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, उसकी यूनिट पता है आपको? उसकी फ्रीक्वेंसी पता है आपको? व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी? वेदर सेम फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कुछ और है, वो फ्रीक्वेंसी एवरीवेयर विल बी रिमेनिंग सेम. अगर फ्रीक्वेंसी है तो इट इज नॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी में फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड. ठीक है, तो वो क्या है? 50 हर्ट्ज. क्या है ये? कैन यू एक्सप्लेन मी? 50 हर्ट्ज बोलते हैं, बोलते हैं 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इंडियन AC सप्लाई. तो 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी. What is that? What do you mean by that 50 hertz? कुछ आइडिया है? मतलब somebody means it is somebody is performing circummotion somewhere. कौन circummotion कर रहा है 50 hertz अगर है? करंट? नॉट एग्जैक्टली करंट नहीं करता है, जनरेटर है ना. तो Yes, जनरेटर sir. तुमने देखा है बिल्डिंग्स में भी रहता है, मॉल्स में भी, एंड पावर स्टेशंस में टरबाइन रहता है. इट कैन बी टरबाइन और इट कैन बी इंटरनल कंबस्टन इंजन, डीजल इंजन, DGZ बोलते हैं उसको. तो व्हेन वी स्टार्ट दैट, तो इट इज रोटेटिंग एट 3000 RPM. 3000 RPM. तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो वहां पर जैसे, चलो क्वेश्चन लेते फिर फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ. माय दिस सेकंड क्वेश्चन, कैन यू सी? दिस इज माय क्वेश्चन. Yes, sir. Then I'll explain you further. Frequency of AC supply is 3000 RPM. Find its frequency in SI unit. कितनी आएगी पहले बताओ. चलो सॉल्व करो इसको. एक मिनट, आई विल गिव यू राइटिंग. एक मिनट, इसको बाद में ले लेते हैं. इसको जस्ट लेट मी शिफ्ट इट हियर. या एक मिनट, जस्ट वेट. देखो यहाँ कोई डाउट है आपको ये पॉइंट में? ये देख लो पहले, जस्ट सी इट. आई विल एक्सप्लेन यू. 50 हर्ट्ज जो अपनी फ्रीक्वेंसी है AC की, अल्टरनेटिंग करंट की, आफ्टर न्यूमेरिकल, सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल. दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम सो फार. फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Number of cycles per second, and if total number of cycles are given and total time is given, we'll divide both. So automatically this will give us the number of cycles per second मिल जाएगा इस फार्मूले से. And unit hertz है, revolution per second भी है, RPM भी है. RPM होता है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा यूनिट में मिल जाती है यूनिट उसकी hertz. Now my question is this. Can you see? Frequency of AC Yes, supply sir. is 3000 RPM. Find the frequency in SI unit. बोलिए क्या आंसर आ रहा है? बोलिए. F is equal to, क्विक आंसर दोनों. F is equal to RPM upon 60. तो RPM कितना? 3000 डिवाइड बाय 60, बिकॉज इन रोटेशन पर मिनट है ना. 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड. तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने. तो 60 से डिवाइड कर दिया तो 50 हर्ट्ज और रिवॉल्यूशंस पर सेकंड और रोटेशन पर सेकंड. गॉट इट? Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, क्या हो रहा है? जनरेटर है ना, जनरेटर का जो आर्मेचर है, आर्मेचर मींस कॉइल, तो वो 50 साइकिल्स कर रहा है 1 सेकंड में. इट इज जस्ट परफॉर्मिंग 50 रोटेशन इन 1 सेकंड. तो हु इज हेल्पिंग इट टू रोटेट? या तो टरबाइन उसको रोटेट करने में हेल्प करता है, या फिर जो DG सेट अपार्टमेंट्स वगैरह में जो होते हैं मॉल्स में, उसमें DG सेट अपना जो ट्रक वाला इंजन होता है ना, डीजल इंजन, वो फिट होता है उसमें पीछे. तो वो जब स्टार्ट करते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली उसका RPM सेट होता है. मोमेंट यू स्टार्ट, इट विल जस्ट पिक अप 3000 RPM. इन अदर वर्ड्स, इट विल बी परफॉर्मिंग 50 साइकिल्स पर सेकेंड. तो therefore frequency of AC supply is 50 hertz. तो 50 times उसमें
50 साइकिल्स में 50 टाइम्स उसमें 50 साइकिल ऐसे बनती, तो 100 टाइम्स जीरो हो जाता है उसमें। यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो। एक साइकिल में 2 बार जीरो होता है करंट एंड वोल्टेज। इट इज क्वाइट फास्ट, वी डोंट कम टू नो। 12th में जब पढ़ेंगे हम एसी सप्लाई, वहां पर डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर जस्ट आई एम गिविंग यू द फील ऑफ फ्रीक्वेंसी which is 50 hertz. Generator is rotating at the speed of 50 cycles per second. Quite a fast, and एक सेकंड में 50 cycles complete हो रही। और ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड क्वेश्चन नीचे दिख रहा है आपको। तो एवरी टाइम whenever RPM is given, you have to divide by 60 and then it will be in SI units. To this particular point, we'll be needing almost many chapters throughout 11th and 12th. Don't forget this. RPM में दिया करना है, डिवाइड करना है उसको 60 से। Got it? तो फ्रीक्वेंसी हमें SI यूनिट में मिल जाएगी। Another question: if particle makes 44 cycles in 1 minute, find frequency. है ना? तो यहाँ पर वो पहला वाला फॉर्मूला लगा दो, मिनट ही दिया हुआ है, या हाफ मिनट कर देते हैं, हाफ मिनट। ठीक है, 1 मिनट इन हाफ मिनट। फाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1.46. हाँ, तो वो फार्मूला लगा दो। अभी जो हमने अभी लिखा था ऊपर, क्या था वो? नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इज नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम। तो साइकिल कितनी है? 44 रोटेशन या साइकिल। टाइम हाफ मिनट, हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होंगे बोलो? T इज इक्वल टू हाफ मिनट। तो मिनट में, 1 मिनट में 60, तो 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड। तो 30 से डिवाइड करना है आपको। तो 4.4 by 3 कितना रहा? 1.13 समथिंग। नहीं, 1 मिनट, 0.43. 1.4 12 और 2 6 समथिंग है ना, 6 7 समथिंग। Yes, sir. 1.46. Sir, actually, yes, sir. 1.46. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज गिवन, उसमें या फिर इसको राउंड फिगर में ऐसे कोई रेशियो दिया होगा, तो दिस कैलकुलेशन डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस गिवन। ठीक है, चलेगा? एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर? नो प्रॉब्लम। No, sir. Sir, I have a question. एक मिनट, इसको 6 6 7 कर दो, 7 कर दो, 6 6 आएगा ना राउंड। हाँ बोलिए। Sir, is there a way by which we can measure the RPM of the everyday things that are around us, like the ceiling fan There or is maybe something like that? no, there is in engines it is given. जैसे जनरेटर है उसमें RPM meter is given. Sometimes if after servicing it goes, becomes more or less, you can just turn the knob and make it 3000 RPM. गाड़ियों Sir, में भी but रहता then है RPM meter. is there a fixed value like for each and everything? Like for example, I put on the ceiling fan on the speed 1, then is there a fixed value for that RPM, or is that just any kind of value that can be varied by voltage? It is fixed value. 50 hertz means 50 hertz. Generator has to rotate 3000 RPM. If it is more or less, it is to be adjusted. They have to ensure there is the 24/7 duty. Somebody is operating in the power station and continuously having watch. It should be 3000 RPM, neither more nor less, because if it goes up, voltage will go up, devices will go may get damaged. घर में आपका टीवी खराब हो सकता है, फैन खराब हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकते हैं if voltage goes up. Sometimes technical snag comes, but otherwise it is very carefully watched 24/7. It should not be Yes, more sir. than that. कम हो गया तो रिस्क नहीं, कम हो गया, suppose there is some fault coming, RPM goes down, so voltage will go down, things will not work, but they will not be damaged because of the more heat and more power. तो इसको strictly maintain करना पड़ता है।
US supply is 60 hertz, Indian supply is 50 hertz. Different countries में different है. Yes. Alright, थोड़ा. Otherwise, गाड़ी जब हम चलाते, when we drive the vehicle, then there is no rule. Rule is there, upper limit is there. Nowadays, they have made it on highway speed is maximum speed. I think 120 km/h. They have made it because of that. Fuel saving can be there on highways. है ना? वैसे तो कोई follow नहीं करता है, but other countries they strictly followed. If you are over speeding, immediately cameras fitted on the road will be noting it, and immediately fine will come. But India में भी ऐसा नहीं हो रहा है, but आगे चल के होगा. Roads पे भी upper limit होती है. We cannot exceed city के अंदर जो है, it may be 40 or 60. If we are over speeding, we are supposed to be fine. तो गाड़ी जब चलाते हैं, it is RPM is variable depending upon traffic, but upper limit you have to follow. Got it? Yes, sir. Engine is rotating inside. It is performing RPM. According to that, the speed comes. Accelerator जब देते हैं, engine fast rotate करता है. RPM उसके बढ़ जाते हैं जब accelerator देते हैं. तो speed भी बढ़ती है ground में. Rolling होता है, उसमें rotation. Wheels are rolling on the ground. You know, rolling and rotation and circummotion. All three are different. But तीनों में circummotion, somewhere particles are performing circummotion. Circummotion normal particle तो कर ही रहा है, but fan is rotation motion. It is a combination of circummotion. Rolling motion is forward motion. Rolling motion means combination of rotation plus forward motion. जब हम गाड़ी चलाते तो wheel rolling करता है, rotate नहीं करता. Rotate कब करेगा? Stand पे अगर खड़ा करो, wheel को घुमाओ तो rotate करता है. Moment you drive it, it is rolling motion. तो rolling motion में भी circummotion involve होता है. Rotation motion में भी circummotion involve होता है. Got it? So all three are different. So we'll Yes, see sir. rotation motion and rolling motion. We'll see in the 7th chapter. Got it? Yes, Now sir. time period. Time period is very simple. Time of one revolution. है ना? अच्छा, you know difference between revolution and rotation. Revolving is the circular motion. Rotation, I told you, Earth is rotating on its own axis. Earth जो होती है ना, अपनी axis Yes, पे sir. rotate होती है. Each particle of the Earth are performing circular motion about the common axis of rotation. हम लोग we are also doing the circular motion. You know, हम लोग कर रहे हैं क्या circular motion? Yes, everybody is performing circular motion at this moment. You know, Yes, sir. Earth But I पर हैं think हम लोग. we are. I think What we do are you think? revolving, not Rotation, circular rotating. motion. Because sir, अरे if we just think about it, I think we Hmm. are on the Earth, and because the Earth is rotating around its own axis, a point on Earth would be revolving around its own axis. So we are doing circular motion. I told you just now, rotation होता है yes, ना. sir. Yes, sir. Each That is true. Yes, sir. each particle, जैसे फैन का मैंने एग्जांपल दिया, अर्थ का भी एग्जांपल है. अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. इट इज टेकिंग 24 hours. Each particle on earth, including you and me, are performing the circular motion of certain radius. अगर जो Yes, लोग sir. इक्वेटर पे हैं उनकी रेडियस तो 6400 किलोमीटर होगी. दो आर टुवर्ड्स द पोल, उनकी रेडियस कम होती चली जाएगी, है ना. धीरे धीरे जैसे यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, रेडियस विल बी स्मॉलर एंड स्मॉलर. इंडिया में वी मे हैव 6400 से थोड़ी कम रेडियस. तो अपना भी सर्कुलर मोशन हो रहा है. वी आर आल्सो डूइंग सर्कुलर मोशन बीइंग ऑन द अर्थ, अपार्ट फ्रॉम द रिवोल्यूशन अराउंड द सन. रिवॉल्व भी कर रहे हैं, वो भी सर्कुलर मोशन ही है. अगर इट इज इट इज स्लाइटली इलिप्टिकल पाथ है तो उसको सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते. बट दिस रोटेशनल मोशन की वजह से अपना सर्कुलर मोशन हो रहा है. राउंड बिल्कुल है ना. तो each of us are doing circular motion on the earth, along with the earth, because of rotation of earth on its own axis. तो ठीक है. तो time period is what? Time period is time of one cycle. टाइम ऑफ वन साइकिल लिख दो या रिवॉल्यूशन जो भी लिखो. टाइम ऑफ वन साइकिल. एक पर्टिकुलर साइकिल में कितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड हो जाएगा एक रोटेशन में ना. तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है ना. तो देखो रिलेशन रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है ना. तो लेट अस सी हाउ इट कम्स रेसिप्रोकल. इन टी सेकेंड्स, ये वाला टी सेकेंड्स, वन
one cycle or one revolution is done. ठीक है? In t second, how many revolutions? 1. तो therefore in 1 second number of revolution t नीचे आ जाएगा. t second में 1, तो 1 second में t will come in denominator, 1 by t revolutions in 1 second. 1 and in number of revolution in 1 second is called frequency. ये जो लेफ्ट साइड है देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी. तो लेफ्ट साइड में f आ गया, इधर 1 by t आ गया. तो f is equal to 1 by t और t is equal to 1 by f. बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ठीक है, तो सिंपल है रिलेशन ये. नोबडी विल आस्क यू द डेरिवेशन, बट एवरी टाइम वी आर नीडिंग द रिलेशन बिटवीन बोथ. ठीक है, क्लियर? Yes. Will you remember this? T and F both are reciprocal to Yes, each sir. other. So frequency is 1 upon t or time period is 1 upon frequency. ठीक है, so this you have to remember. We need it in many chapters. Now as we have seen, velocity पढ़ी थी हम लोगों ने. अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? Velocity. Now in this chapter of circummotion, in this topic of circummotion, angular velocity. What is the angular velocity? Angular velocity का आइडिया लगा सकते हैं क्या होगा? बोलिए. Angular velocity का सिंबल ओमेगा. ये W जैसा दिखता है ना इसका. What we read it as ओमेगा, ऐसा पढ़ते हैं है ना, ओमेगा. तो W जैसा दिखता है ये. तो एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर पहले हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी when time interval is large, in that case it will be defined as average. तो रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर यहाँ पे है तो यहाँ भी एंगुलर हो जाएगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था. डी थीटा, डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो डेल्टा लिखते हैं. तो लेट्स सी फार्मूला देखिए इसका. कैन यू सी इट? एवरेज एंगुलर Yes, sir. वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा. सिमिलर है जैसे हमने वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा थीटा है थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टाइम. यूनिट क्या होगी इसकी? तो रेडियन होती, टाइम की सेकंड होती. and it is वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ. तो डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन अभी हम बाद में देखते हैं, केवल लिख देते हैं अभी वेक्टर. डायरेक्शन अभी बाद में देखते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू. इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस रेट ऑफ चेंज से डिपेंड करते हैं. डेल्टा की जगह डी हो जाएगा. मतलब ओके, इसको ऐसे लिखेंगे. चलो जैसे हमने इसको थोड़ा सा, जस्ट लेट मी राइट इट प्रॉपर वे. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. जस्ट लेट मी राइट इट. इसको कट कर देते. देखो कैसे लिखेंगे इसको. ओमेगा विल बी लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल अप्रोचिंग 0. तो यही डेल्टा थीटा. दिस थिंग will convert into, जब टाइम बहुत छोटा हो जाता है तो डी थीटा बाई डी टी ऐसे. तो जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी में पढ़ा था, सिमिलर वे हियर आल्सो इट इज आल्सो द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0 इट बिकम्स डी थीटा बाई डी टी. एंड उसको ऐसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी. गॉट इट? तो डिस्टेंस आपको आना चाहिए. एवरेज वैल्यू कब होती है? जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है. ये इसको टाइम जो है फ्यू सेकंड्स दिया होगा या फ्यू मिली सेकंड, मिनट, आवर्स ऐसे दिया होगा. जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज. इसको कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके. इसको कैसे निकालेंगे? दो वैल्यूज दी होंगी आपको, इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल, टाइम इंटरवल दिया होगा, डिवाइड कर देंगे. और इसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा,
पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों अभी करके देखते हैं, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट। तो वेक्टर है, अभी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा सीखते हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन सीखते हैं। देखो डायरेक्शन तो थोड़ा सा इसको ऊपर लाना पड़ेगा। लेट मी ब्रिंग इट हियर। ठीक है, देखो डायरेक्शन वही जो थीटा की डायरेक्शन थी, बाय राइट हैंड रूल। अगर एंटी क्लॉकवाइज है सब, फिंगर्स को इसके ऊपर रखो, थंब ऊपर की तरफ जाएगा। राइट हैंड की फिंगर सर्कमफ्रेंस पे रखो, थंब विल गो अप। तो एंटी क्लॉकवाइज angular velocity is upward when some particle is rotating, तो clockwise तो angular velocity is downward। ठीक है, और in uniform circummotion, यूनिफॉर्म सर्कम, अच्छा डायरेक्शन में अभी थोड़ा सा और, ओके ये लेट अस सी डायरेक्शन में सम मोर पॉइंट। डायरेक्शन में सम मोर पॉइंट, देखो देखो एक डायग्राम है मेरे पास, ये तो कैन यू सी इट। ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे। फिंगर्स को कैसे रखना है, फिंगर्स को सर्कमफ्रेंस में रखना है ऐसे। तो राइट हैंड का थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे होगी, यहाँ पर ओमेगा नीचे रहेगा, ओमेगा इज डाउनवर्ड। गेटिंग, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, कैन यू सी डायरेक्शन क्लियर होगा कि नहीं? अच्छा Yes, ये sir. बताओ, तो यू सी एक योर, बार फिर एक बार देखो क्या इसमें क्या करना है, फिंगर्स को इस पे रखना है। देखो कोई कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अभी ये डिस्क है ये, है ना? तो डिस्क में यहाँ पे ये पार्टिकल ले लो, पार्टिकल ऐसे घूमेगा, इट विल, डिस्क अगर ऐसे घूम रही है, कोई भी पार्टिकल ले लो उसका सर्कमफ्रेंस पे या अंदर ऐसे घूमेगा। तो फिंगर्स को ऐसे रखना है, फिंगर्स को देख रहे हो ये डायग्राम, फिंगर्स को पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ रखना है। थंब किधर जाएगा, राइट हैंड का नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर, यस नो। सर, और ऐसे ही यहाँ पर, इसके लिए अगर फिंगर्स को हम इधर रखेंगे तो थंब इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। यस अच्छा ये सर। बताओ, आपके रूम में जो फैन रोटेट कर रहा है, अभी तुम्हारा अगर फैन स्विच ऑन है तो यू सी ओमेगा किधर होगा, सी द सीलिंग फैन, कीप द फिंगर्स along the direction of motion। थंब किधर आ रहा है बताओ? अब फिंगर्स रखनी है रोटेशन की डायरेक्शन में। तो राइट हैंड की, Down. राइट हैंड की फिंगर्स रोटेशन किधर हो रहा है, एंटी Down. क्लॉकवाइज जा रहा है ब्लेड से। फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में रखो तो थंब नीचे आएगा। देखो ऑल द फैंस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड थंब इज कमिंग डाउन एंड ब्रिंगिंग द एयर डाउन। हवा नीचे ला रहा है ना। सम स्टूडेंट वर टेलिंग कि सर इसीलिए उसमें हवा नीचे आती है। तो वी कैनॉट से ओमेगा नीचे है तो हवा नीचे आएगी, बट ओमेगा सडनली डाउनवर्ड है ना। ओमेगा इन दिस केस इज डाउनवर्ड, फैन के ऑलमोस्ट ऑल फैन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कोई किसी का क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, नीचे से देखो तुम लोग ऊपर, फैन फैन को देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, इट Yes, इज sir. गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, गाड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इट विल बी कमिंग डाउन थंब, ये सिचुएशन है, कैन यू सी, ये सिचुएशन है। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछो। Yes, sir. आपको ओमेगा की समझ में आ रही डायरेक्शन, कैसे फिंगर्स रख दो जिस तरफ घूम रहा है, थम्स अप वाली पोजीशन, थम्स डाउन, ऑफ कोर्स थम्स डाउन है, कैन आई मेक इट? एक मिनट, जस्ट लेट मी ट्राई। फर्स्ट डायग्राम इसको कट करके, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लेट मी पुट इट हियर फर्स्ट। इसको रोटेट करना है, रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, हो गया, थोड़ा और रोटेट करना है। देखो ये फर्स्ट डायग्राम के साथ अभी मैच कराते। सॉरी एक मिनट, पहले इसको हटा देते, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, कैन यू सी नाउ इट इज Yes, मैचिंग sir. विद दिस, इसके साथ मैच हो रहा है। थोड़ा Yes, छोटा sir. कर देते हैं, कैन यू सी? Yes, sir. फिंगर्स आपकी ऐसे आ रही, फिंगर्स जो है ना आपकी ऐसे आ रही, थंब ऊपर जा रहा है इसमें। क्लियर?
Yes, sir. इसको भी यहाँ Yes, लगा sir. देते, कट कॉपी पेस्ट करके। ऑलराइट, ओके, नाउ इट्स ओके। ऐसे 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 पकड़ना है उसको, फिंगर्स को रखना सर्कमफ्रेंस में, जिधर पार्टिकल रोटेट कर रहा है या बॉडी रोटेट कर रही, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। गॉट इट? अच्छा ये बताओ, मोमेंट यू, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस है। ओके, यहाँ पे देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वन मोर पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये both will be same, angular velocity and average value and instantaneous value, both will be same। ठीक है, अभी जो हमने अलग अलग पढ़ा ना, देखो यहाँ ये एवरेज एंड एंगुलर बोथ विल बी इक्वल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये वॉल, ये क्लॉक होती है ना अपनी, जो नॉन डिजिटल वॉल अपना जो वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है, जिसमें जिसमें नीडल्स होती है, हैंड्स बोलते हैं जिनको, है ना? तो उनके जो हैंड्स है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, दे आर ऑल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यू नो। उसके जो पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। तो उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोथ विल बी सेम। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर, या तो जब नॉब को स्ट्रिंग से बांधते हैं और घुमाते हैं तब भी सर्कुलर किसको मोशन घुमाते होता हैं? सर्कुलर है। मोशन होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट यूनिफॉर्म होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है, आर यू एबल टू, है ना? कोई स्टोन को तुमने बांधा थ्रेड से और घुमाया, मेंटेन करके रखे तो यूनिफॉर्म होगा। हाँ होगा, होगा, यस, यू कैन मेंटेन द स्पीड, कांस्टेंट स्पीड तभी भी होगा। यू कैन टेक द स्ट्रिंग, टाई द स्टोन, यू कैन मेक द। अच्छा यहाँ पे हम लोग सब अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा है हमने, जस्ट लेट मी, हॉरिजॉन्टल अभी हम लोग इस चैप्टर में हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, और वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्टिकल, उसमें ग्रेविटी का भी रोल रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसमें वही पढ़ेंगे। स्ट्रिंग को हमने बांधा, आई मीन स्टोन को स्ट्रिंग से बांधा, वो वर्टिकल घुमा रहे हैं उसको। हॉरिजॉन्टल घुमाएंगे तो ये इसके टर्म्स आएंगे, वर्टिकल घुमाएंगे टर्म्स यही रहने वाले हैं, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी रोल रहेगा। उसको भी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर नहीं आएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम लोग मोस्टली एग्जांपल लेंगे सारे, ऑलमोस्ट ऑल द एग्जांपल ऑफ वॉल क्लॉक में। देखो वॉल क्लॉक जो है, उसमें आप बोलोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑफ कोर्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, बट स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है वो, नीडल्स हैं, हैंड्स हैं, उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं वो, तो उसमें जी का रोल नहीं रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब स्ट्रिंग एंड स्टोन लेंगे, जब थ्रेड एंड स्टोन लेंगे, तब जो है उसका सेपरेट करेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। गॉट इट? हाँ, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, चलो बताओ, अभी डायरेक्शन देखते हैं, आपको कितना समझ में आई डायरेक्शन। व्हाइल ड्राइविंग, व्हेन यू टेक लेफ्ट टर्न, व्हेन यू टेक लेफ्ट टर्न, इन विच डायरेक्शन योर एंगुलर वेलोसिटी विल बी? जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, किधर आएगी? Sir, up. आप कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन वी से इट इज Right hand इक्विवेलेंट टू? The right hand rule. राइट हैंड रूल से फिंगर्स को इधर रखेंगे, थंब ऊपर की तरफ जाएगा, ये सिचुएशन है ना, ये वाला, Yes, sir. है ना? ऐसा है, इसमें लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, इसमें राइट टर्न ले रहे हैं। अब तो आंसर क्या होगा? आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे लेफ्ट हैंड में कर्व करो अपवर्ड, तो यू आर नॉट गोइंग अप। देखो इंटरेस्टिंग है ना, अपवर्ड, आप तो लेफ्ट में जा रहे हैं, यू आर गोइंग लेफ्ट, बट योर एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग अप, अपवर्ड। Sir, I have a little conclusion here. Sir, Hmm. when we take something like a frisbee or something like a ring or something and we put it in our finger like a keychain and we start spinning it,
after a while we understand that the ring starts to travel up and then it shoots out of our finger. Is that because of the angular velocity's direction? उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, पता है, जब when you turning, you're turning in friction coming into action, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है उसमें, therefore it is going up or down, it may go down also, है ना? तो Yes, sir, it फ्रिक्शन इज can. आल्सो प्लेइंग द रोल, है ना? तो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, तो उसको आप सेपरेटली हम लोग सोच सकते हैं। फ्रिक्शन, कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए ना ऊपर जाने के लिए, Yes, sir. वी आर अप्लाइंग, और तो फ्रिक्शन का रोल आएगा उसमें, गोइंग अप और गोइंग डाउन, Yes. ठीक है, ओके। और व्हेन वी टेक राइट टर्न लेंगे तो Sir, down. डाउनवर्ड, Down. डाउनवर्ड, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द रोड, अंदर रोड के अंदर नहीं जा रहे, बट अपना ओमेगा एंगल, ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं, है ना, एक्सियल, इनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, एक्सियल वेक्टर, ये अलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर, तो व्हेन वी टेक लेफ्ट टर्न, our angular velocity की डायरेक्शन अपवर्ड, when we take right turn, angular velocity will be डाउनवर्ड। ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगी राइट टर्न में, गॉट इट? Yes, sir. बोलिए, ठीक है। Sir, डायरेक्शन, यू रिमेम्बर, कभी कभी दे आस्क यू द डायरेक्शन ओनली, यू नो, in examination they ask you the direction, so you should be confident enough to write. Clear to everyone? बोलिए। yes, sir. I have a. It might be a little silly question, but if we try the same thing in vacuum, will it actually go up or down according to the angular velocity? वैक्यूम नथिंग टू डू विद द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है तो उसका रोल होगा, वैक्यूम में भी होता है ना? वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी फ्रिक्शन रहेगा। Sir, I mean, तो like in space where there is no gravity, like in that kind of a situation, will it really work? Will it, the angular velocity affect our motion? एंगुलर वेलोसिटी, Will it, sir, Yes. affect our motion? देखो मैंने बोला ना, अगर अगर आपका जो ग्रेविटी में जैसे अभी हम लोग ग्रेविटेशनल, जब वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं तो ग्रेविटी अगर है तो उसका रोल लेंगे, रोल रहेगा ग्रेविटी का। और अगर इट इज इन द वैक्यूम, इन नॉट वैक्यूम, इन द स्पेस, Yes, sir. स्पेस के अंदर, वो भी सैटेलाइट के अंदर है ना, तो वहां पर फ्री फॉल की सिचुएशन होती है। फ्री फॉल Yes, में sir. ग्रेविटी का रोल खत्म होगा, तो ग्रेविटी का रोल नहीं है तो उस समय क्या होगा, तो उसके पैरामीटर्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। थ्रेड से घुमा रहे तो घूमेगा वो, बट उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो इट डिपेंड्स, है ना, ग्रेविटी का रोल वहां पे किस तरफ जाएगा, क्या जाएगा। यहाँ पे तो टेंजेंशियल पाथ बना के इट विल गो टू पैराबोलिक पाथ, वहां पे इट विल गो द स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, अगर ग्रेविटी नहीं है तो। डिपेंडिंग अपॉन Yes, sir. सिचुएशन वी हैव टू राइट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, है ना। ओके, चलो देखो, प्रूव दैट, ये नेक्स्ट वन इज ओमेगा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन वैलिड रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये वी कैन वेरी इजीली डू इट, है ना। कैसे करेंगे, देखो हमने ये पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना। तो जब थीटा 2 पाई हो जाएगा तो टाइम टी लगेगा, है ना। तो अभी जो डेफिनेशन है उसमें थीटा, इफ थीटा इज 2 पाई मींस वन, इट हैज गॉन वन रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट हो गया तो टाइम पीरियड, वन रोटेशन का या वन रिवोल्यूशन का टाइम टी होता है। तो वी नो दिस फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, व्हेन टाइम इंटरवल इज कैपिटल टी, इट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। कैपिटल टी में पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो 2 पाई, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, डेल्टा टी की कैपिटल टी, डेल्टा थीटा का 2 पाई, एंड 1 बाई टी इज एफ, तो 1 बाई टी की जगह एफ लिख सकते हैं। तो वी गॉट द ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, which is also equal to 2 pi f, because 1 by t is f, but it is for uniform circular motion, नॉन यूनिफॉर्म में ये नहीं लगता, ठीक है। उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन होती है ना, जैसी काइनेमेटिक इक्वेशंस है तो वहां पर रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन होती है वहां पर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अरे देर तुम लोग हो लाइन पर,
Yes, sir. Okay, तो नोट कर लो ये. This is useful lesson we need in many chapters. Waves में simple harmonic motion and so on. Alternating current के chapter में in 3-4 chapters, rotation motion में at least 4 chapters. So we are going to use these relations. All right. Yes, sir. इस पे बेस थोड़े क्वेश्चन कर सकते हैं. अब ये देखो, मेरा क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक. कैन वी डू दिस क्वेश्चन? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक, और यू विल डू इट योर ओन. चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोथ विल बी सेम. तो एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है ना, ये पहला वाला फॉर्मूला. टी कितना होता है? सेकंड एंड ऑफ क्लॉक टेक्स हाउ मच 60. टाइम इन सेकंड्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन रोटेशन? 60 सेकंड्स है ना. Yes, sir. क्लियर है ना? वन, ये आपको घड़ी देखनी पड़ेगी. ये अब आजकल वो डिजिटल क्लॉक आ गई है, तो तुम लोगों को घड़ी देखने में भी प्रॉब्लम जाती है. वॉल क्लॉक है घर में, देखो उसको, जो जो सबसे थिन हैंड है वो सेकंड हैंड, सबसे थिन वाला वॉल क्लॉक में. इफ यू सी केयरफुली, थिनेस्ट वाला सबसे, और मीडियम वाला जो सेकंड हैंड है, और सबसे जो छोटा और थिक है, दैट इज आवर हैंड. सेकंड हैंड इज टेकिंग 60 seconds to complete one rotation. It comes to be pi by 30. यूनिट क्या होगी बोलिए? Sir, hertz. ओमेगा है ना भाई, ओमेगा. Oh, sorry, sir. रेडियन पर सेकेंड है. Yes, sir. ओमेगा थीटा का रेडियन और टाइम का सेकंड्स. क्लियर? Yes, sir. तो नोट कर लो इसको. दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन. Done, sir. डन, नोट कर लो. Any difficulty so far? We have seen angular displacement, angular velocity we are doing, frequency we are done. frequency का यूनिट क्या देखा हम लोगों ने? हर्ट्ज. और आरपीएम है तो 60 से डिवाइड करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड. ठीक है. Shall we go back to the beginning? What we have seen so far? Angular displacement we have seen, frequency we have seen. frequency के 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए. हाँ, आई वेट एसी का मैंने बता दिया था ना. ये जो जनरेटर है ना, जनरेटर 3000, उसका जो इंजन है 3000 आरपीएम पर घूमता रहता है हमेशा, है ना. और 50 हर्ट्ज में हाउ मेनी टाइम्स जीरो विल बी देयर? अगर तुम्हें वेव्स याद है, वेव में हमने पढ़ा था इस तरह से, एक रोटेशन में से एक वेव बनती है ना. वेव का चैप्टर 9th में पढ़ा था ना. तो उसमें 2 बार जीरो होते, एक साइकिल में 2 बार जीरो होते. 50 हर्ट्ज मींस 100 टाइम्स जीरो. करंट जो है 100 टाइम्स जीरो होता है इन 1 सेकेंड, यू नो. 100 टाइम्स पीक वैल्यू पे, 50 टाइम्स पीक वैल्यू पे, प्लस पीक वैल्यू पे, 50 टाइम्स माइनस पीक वैल्यू पे. तो जब एसी पढ़ेंगे तो उस समय हम ये देखेंगे ना. 50 हर्ट्ज में 100 टाइम्स जीरो होता है अल्टरनेटिंग करंट में, या कोई भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, है ना. सर्कुलर मोशन को ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना. ऐसे वेव बनती. अगर आपने वेव ठीक से देखा है 9th में, तो यू कैन रिकॉल द थिंग्स. ठीक है. सिंपल हार्मोनिक मोशन सुना आप लोगों ने? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम.
Have you heard? Are you there? Yes. सर चैप्टर है ये सुना है। हाँ, वो सर्कोमोशन सर्कोमोशन से रिलेटेड होता है। सर्कोमोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कोमोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्कोमोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे जैसे अपनी टू व्हीलर ले लो या कार ले लो, है ना, उसके जो इंजन का जो पिस्टन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड होता है मूव, तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। एंड उसके एंड में एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, दैट शाफ्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होती है। दैट रोटेशनल मोशन, आई मीन combination of circummotion is called rotational motion. That rotational motion is transmitted to the wheels of the car and two wheelers by the transmission system. फिर वो व्हील रोटेट करते हैं, तो और वो फिर ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड व्हील को पुश करता है, तो रोलिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। दैट्स हाउ व्हीकल मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पिस्टन करता है, तो वो सर्को मोशन में कन्वर्ट होता है। एंड देन सर्को मोशन रोलिंग मोशन में कन्वर्ट होता है, जब ड्राइव करते हैं तो रोलिंग मोशन होती है व्हील की, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है सेकंड बुक में, वी आर गोइंग टू सी, तो ये सब टर्म्स उसमें भी लगने वाले हैं। ऑल दीज टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज देयर ओनली, देयर आल्सो। तो टाइम पीरियड देख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बोलो, एफ इंटू टी विल बी हाउ मच, 1 1। ये टी इधर आ जाएगा, एफ इंटू टी विल बी ऑलवेज 1। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। वन थिंग गोज अप, अदर थिंग गोज डाउन, प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। एंगुलर वेलोसिटी पड़ी, एंगल अपॉन टाइम, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ कोर्स। जैसे वेलोसिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एंगल बना रहा है सेंटर में, तो कितना एंगल कितने टाइम में बनाया उसने, एंगल में डिवाइड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। उसको भी हम जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस है, इसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। नंबर ना मतलब इंस्टेंटेनियस वर्ड हटा के सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसका क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया ना, डिफरेंशिएशन का। इसका हो गया, अभी इसका भी करने वाले हैं हम लोग, आगे देखते हैं, मैं देता हूँ क्वेश्चन। डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं है, लेफ्ट टर्न लेते हैं तो ओमेगा अपवर्ड होता है, राइट टर्न लेंगे तो ओमेगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमने एवरेज वाली एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वाले फार्मूले से निकाला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत सारे इक्वल। ठीक है, नाउ ये भी एवरेज का ही है आपको। इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन दे दूं, ये होमवर्क में दे सकते हैं कि आपको कैन आई गिव यू इन होमवर्क? एक मिनट, ये तो हो गया एक मिनट, दिस यू कैन टेक इट इन होमवर्क, है ना। ठीक है, just let me cross check it is okay, everything is okay. Find ratio of angular speed of rotation of earth on its axis to the angular speed of our end of the clock. थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा, चलेगा क्या, समझ में आ रहा है? On Yes, its sir. axis, on its axis to the angular speed of our end of the clock, दोनों का रेशियो निकालना है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको। ठीक है, कैन यू रीड इट नाउ प्रॉपर्ली? दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, Yes, sir. नोट डाउन।
हम्म, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी इंस्टेंटेनियस क्या करते हैं, एंगुलर स्पीड निकालते हैं। सपोज some object is rotating with the non-uniform velocity. Before we move on to the next topic, suppose if I give you question ऐसे दे रहा हूँ, if particle performs ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ये, परफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं यूनिफॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, सर्कुलर मोशन if its angular displacement is given by theta is equal to t square plus t plus 1, where t is the time, where t is time है ना, t क्या है, टाइम है, then find angular velocity at t is equal to 2 seconds. Okay. This is also homework. I'm not giving you any hint for this. You think your own and do it. Okay, just simple है. You have to do it your own. Tomorrow, I mean Monday will do it. Monday आपका टेस्ट भी रहेगा, पहले क्लास रहेगा हाफ एन आवर, 1 आवर का टेस्ट रहेगा. We'll use the time. Already आपको अपने को क्लासेस का 3 क्लासेस हैं, तो विल नॉट टेस्ट वन हाफ एन आवर पहले क्लास रहेगा, देन टेस्ट रहेगा. ठीक है. Yes, sir. नोट है, नोट कर लो इसको. Anybody is finding any problem in this? कुछ पॉइंट मिस हो रहा है कि आपके पूछ लो उसको, डायरेक्शन वगैरह और कॉन्सेप्ट फार्मूलाज. इफ यू आर जस्ट मिसिंग सम पॉइंट, यू कैन जस्ट आस्क. बोलिए. You want me to explain some once more any point? Is it okay? Yes, sir. Apart from this, homework के क्वेश्चन तो हम क्लास में करेंगे. ट्राई योर बेस्ट टू डू इट, जितना हो रहा है, जैसा भी हो रहा है सॉल्व करके भेजो. तुम लोगों को भेज नहीं रहे होमवर्क क्वेश्चंस. बाय दैट आई कम टू नो क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं. नो रिस्पॉन्स करेंगे, नोबडी इज इंटरेस्टेड. तुम लोग को एक दिन क्लास के बाहर रखना पड़ेगा होमवर्क नहीं करने से, फिर तुम लोग बराबर करोगे. नोटेड. Yes, sir. Yes, sir. देखो, लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, जो वन डायमेंशनल मोशन में हम वेलोसिटी बोलते हैं, सेम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे रहेगी, तो इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. इसकी कोई ऐसे सच डिफिनेशन नहीं है बुक में. सेम वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं. वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड tangential velocity of object in circular motion. Tangential velocity of object in circular motion is called linear velocity. ऐसा यूनिट वही रहे जो होती है. ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. नथिंग न्यू. Is it constant in uniform circular motion? No, it is not constant. Direction change हो रही है ना. It is not constant even in uniform circular motion.
since direction is changing continuously, है ना? ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, यू शुड नो इट, है ना? डायरेक्शन वही रहेगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, इधर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? तो ओनली थिंग न्यू नेम इज देयर लीनियर वेलोसिटी, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू हियर। लीनियर वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, दैट्स ऑल। it is continuously changing. It is continuously changing because its direction is changing. Got it? Now, how it is related to the angular velocity? Angular velocity के साथ क्या relation है? Derivation करना पड़ेगा हमें। Angular velocity के साथ relation बनाना है तो let us see. ये short derivation पूछ सकते हैं आपको बोर्ड, आपको subjective paper में। Let's do that. Relation between both angular and linear velocity. Let's do this. दिख रहा है? Sorry, दिख रहा है आपको? Can you see it? Yes, sir. Yes. छोटा डेरिवेशन है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन रेडियस ds बाय r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ds इज इक्वल टू r को इधर ले आए d थीटा इनटू r, एंड वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऐसे चेंज हो रहा है तो ds अपॉन dt, तो ds की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये वाली d थीटा d theta into r upon dt. d theta upon dt is omega, angular speed होती है, rate of change of angular displacement is called angular speed. तो v is equal to omega r, और वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर में ओमेगा क्रॉस r लिखना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस r। क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा क्रॉस r। हम चेक भी कर सकते हैं ये प्रॉपर रिलेशन है, सीक्वेंस प्रॉपर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये नोट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मैं राइट हैंड रूल यूज करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में, डू यू रिमेम्बर? वी यूज द राइट हैंड रूल। Yes, sir. तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन मैच कराते हैं, ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो लेट अस सी इज इट मैचिंग और नॉट। नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। डायरेक्शन मैच, जैसे फैन अभी रोटेट कर रहा है तो ओमेगा डाउनवर्ड है ना, तो वेलोसिटी जो है मैच कर रही है कि नहीं उसके साथ, एंटी क्लॉकवाइज मैच कर रही है कि नहीं। लेट अस सी इसमें हम लोगों ने कौन सी डायरेक्शन ली? एंटी क्लॉकवाइज ली है इसमें। इसमें इसमें नीचे दिखाया है फैन ऊपर होता है, ये ग्राउंड में, सपोज ग्राउंड में कोई व्हील रोटेट कर रहा है ऐसा, है ना? सपोज इमेजिन करो कि ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है ग्राउंड में ऐसा, कैसे रोटेट कर रहा है ऐसा, ठीक है? फ्लोर पे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये वाले इस पार्टिकल को कंसिडर, इस पार्टिकल को देखो तो ओमेगा किधर होगा? अपवर्ड होगा, तो ओमेगा बीच में होगा इधर। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इधर ले आए वेक्टर को, ओमेगा को, ठीक है? आर इधर है, आर क्या होगा? रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर। इनफैक्ट यहाँ पे लिखूं, आर इज कॉल्ड पोजीशन और रेडियस वेक्टर, पोजीशन और रेडियस वेक्टर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर, सेंटर से कहाँ पे? ऐसे एरो डालो, यहाँ पे है पार्टिकल तो आर ऐसे आएगा, फिर उसको आर को हमें एक्सटेंड करना है, अभी तीनों को इसके टेल ज्वाइन करने पड़ेंगे हमें। आर इधर आ गया, ओमेगा इधर है, ओमेगा पहले तो फिंगर्स, तुम्हारे राइट हैंड की फिंगर्स ऊपर जानी चाहिए, पाम किधर होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। दूसरा जो वेक्टर है उसकी तरफ पाम उसकी दिखनी चाहिए, थंब इधर जाएगा। राइट हैंड की सारी फिंगर्स ऊपर कर लो, पाम इधर होगा तो थंब इधर जाएगा कि नहीं? पार्टिकल इधर ही जा रहा है ना, देखो मैच हो रही है ना उसके साथ। आर यू गेटिंग? लिसन अगेन, फिर से सुनो, देखो थोड़ा बड़ा करता हूँ।
ऐसे पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है। अभी यहाँ पे है पार्टिकल इज हियर, एक मिनट लेट मी चेक, यू आर देयर, हाँ ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो आर ऐसे आ गया, पोजीशन वेक्टर में सेंटर से एरो डालो, ठीक है, तो यहाँ पर है, ओमेगा ऊपर है, तो ओमेगा को पहले यहाँ शिफ्ट करके लेके आओ, आर को भी आगे शिफ्ट करो, टेल एंड टेल ज्वाइन हो गई भी दोनों की, राइट हैंड रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों वेक्टर की टेल टेल ज्वाइन करो, तो कौन सा वेक्टर है, ओमेगा, ये वाला पहला वेक्टर ओमेगा है, दूसरा आर है इधर, तो सारी राइट हैंड की सारी फिंगर्स ऊपर जानी चाहिए, पाम किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, थंब किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, यही तो रूल है। सारी फिंगर्स पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो, पाम शुड बी दिस साइड, या फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर आएगी कि नहीं, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर आएंगे, पाम इधर होगा, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना पड़ता है, तो थंब इधर जाएगा, इधर ही मूव करें ना, तो वेलोसिटी मैच हो रही कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ मैच होनी चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ओमेगा पहले आता है इसमें देखो, और आर बाद में आता है एज पर द कन्वेंशन, तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैच होती है। राइट हैंड रूल रिवाइज करो, हम लोगों ने जब वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर में राइट हैंड रूल मैंने आपको डायग्राम के साथ 4 पॉइंट लिखाए थे, राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, यू कैन रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। राइट हैंड की फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है, सच दैट palm should be towards the second vector, thumb will indicate the thumb will indicate the resultant vector, I mean क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है सी, इसको हम लोगों ने सी लिया था, ये ए था, ये बी था, और ये सी था, तो ए क्रॉस बी, सी विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये मैच करेगा, इट शुड बी प्रॉपर मैचिंग, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वी ओमेगा क्रॉस आर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो ये हो गया, नोट कर लो फिर इसको। दिस इज आर, ओमेगा को हमने शिफ्ट किया इधर, सेंटर से यहाँ पे लेके आए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए, और ये आपकी वेलोसिटी, ऑलराइट, एनी डाउट सो फार, बोले यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ इसका, ओके दिस, इसका पिक ले लीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ऑलरेडी दिस इज डन, एज फार एज आई रिमेम्बर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, फिर भी लेकिन प्रैक्टिस के लिए लीजिए इसको, टेक द पिक फॉर प्रैक्टिस, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, डन। Yes, sir. यहाँ पे वर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा है, मतलब वही जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज दैट लीनियर वेलोसिटी इज एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। ये देखो सिंपल क्वेश्चन अगेन, फाइंड लीनियर स्पीड एट द टिप ऑफ द सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक, second end of the clock, if its length is 10 centimeter, second end का फार्मूला क्या होगा बोलो जल्दी से, just tell me, can anybody tell me quickly, v is equal to ओमेगा R आर, में हाँ, तो ओमेगा अभी थोड़ी देर, अच्छा ओमेगा निकाला था, ओमेगा को टी पाई pi by बाई 30 टी लिख सकते हैं, हाँ पाई बाई 30 आया था अभी, ये टी इज आपका 60 सेकेंड, एंड आर कितना है 0.1, तो ये कितना आ रहा है आपका पाई बाई 300, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड,
ठीक है, जस्ट मैंने सॉल्व कर दिया आपका क्वेश्चन। ओमेगा भी थोड़ी देर पहले निकाला था हम लोगों ने, अगर आप भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमेगा 2 पाई/t 2 पाई/60 इंटू रेडियस, देखो सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा हमें, मीटर पर सेकंड। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। कितने आ रहा सॉल्व करने के बाद? 1.0। सॉल्व कर सकते हैं आप एनी टाइम, इफ यू नो द करेक्ट मेथड यू कैन जस्ट डू इट। ठीक है, चलो डन, नो प्रॉब्लम। बोलिए। No, sir. लीनियर स्पीड और लीनियर, देखो स्पीड बोलते हैं तो डायरेक्शन नहीं लिखते, वेलोसिटी बोलते हैं तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है ना। तो जनरली वी आर डीलिंग विद द स्केलर क्वांटिटीज फार्मूला। तो ये हो गया। हाँ, अगर आप, अच्छा ये बताओ, चलो shall I will give you one more एक मिनट, देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे मैं आपकी वेक्टर नॉलेज टेस्ट करने के लिए। देखो माय क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, if omega is equal to I cap plus j cap and radius vector is equal to j cap plus k cap, find linear velocity। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं, find linear velocity, find linear velocity v and its magnitude। ठीक है, कैसे करेंगे बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे सर। तो एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ठीक है, क्या करना है, क्या बता रहे थे बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे सर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? सर वो क्या डिटरमिनेंट इजी मेथड? यस, इजी मेथड इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मेथड सीखा था हमने क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो लगाना है और सॉल्व करके भेजो उसको। लेट मी सी आपने कितना रिवाइज करके रखा है वेक्टर्स। अच्छा, आपका वेक्टर्स का भी टेस्ट अभी, अच्छा, 1 डायमेंशन मोशन का टेस्ट है, बाद में वेक्टर्स हो गए ना। ठीक है, तो आर दिया है, वी दिया है, ओमेगा दिया है, वी निकालना है, ठीक है, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आर क्या है? रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है। इसी टॉपिक का है जो अभी हमने किया, है ना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, आपको बीच में गैप मैंने, तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। मिस्टेक होती है तो होने दो, मिस्टेक की चिंता मत करो, क्वेश्चन ट्राई करो, जैसा भी समझ में आता है करो उसको। अनलेस यू स्टार्ट सॉल्विंग यू विल नॉट इम्प्रूव। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा वेक्टर्स में, उसको रिवाइज करो और डू इट। लिख लिया इसको? यूनिट हमने नहीं लिखी है तो आप यूनिट छोड़ देना। अगर ये इसकी मीटर है और इसकी रेडियन पर सेकंड है, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन यूनिट नहीं दी होती तो आप भी छोड़ सकते हैं यूनिट। यू कैन जस्ट लीव द यूनिट्स। ऑलराइट, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी एक दो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स एंड लीनियर स्पीड्स ऑफ ए टिप एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक? दिस इज आल्सो important question। सेकेंड एंड ऑफ द क्लॉक है कोई ऐसे, ठीक है, तो उसकी जो टिप है, इट इज गोइंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज मूव करती है। क्लॉक है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की नीडल्स हैंड्स। तो इसकी जो मिड पॉइंट टिप है वो मिड पॉइंट है, उसका आपको एंगुलर स्पीड का रेशियो निकालना है
और लीनियर स्पीड का रेशियो निकालना टिप एंड मिड पॉइंट। Okay. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इसके बाद सेंटीमीटर एक्सलेशन है, उसको थोड़ा सा पढ़ के वाइंड अप कर देते हैं। डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। डेरिवेशन के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। देखो सेंटीमीटर एक्सलेशन के बारे में सीखते थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटीमीटर एक्सलेशन, आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सलेशन। इसका सिंबल AC लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। AC, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, A स्टैंड फॉर एक्सलेशन। When particle performs circummotion, then its velocity continuously changes. There is an acceleration. Velocity change हो रही है कि नहीं? Are you convinced or not? Direction change हो रही है, डायरेक्शन की वजह Yes, से sir. वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कंटिन्यूअसली चेंजेस, तो देयरफॉर देयर इज द एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ओनली, व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ओनली। एक मिनट जगह बनानी पड़ेगी। व्हिच चेंजेस, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉपर कर देते। व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ओनली is called सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। जो केवल डायरेक्शन ही चेंज करते हैं उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड इट इज गिवन बाय, इसका फार्मूला क्या होता है? AC इज इक्वल टू V स्क्वायर, V द लीनियर स्पीड, अभी हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड, डिवाइड बाय रेडियस। एंड सिंस V इज इक्वल टू ओमेगा R होता है, तो यहाँ पर हमने V की वैल्यू ओके, V की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, V की वैल्यू ओमेगा R पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, नीचे एक R है तो R कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर R भी दूसरा फार्मूला बनेगा। और ओमेगा क्या होता है? 2πf, इसका होल स्क्वायर विल बी 4π स्क्वायर f स्क्वायर और R एज इट इज। तो ये फार्मूला या ये फार्मूला मोस्ट कॉमनली यूज होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अगर लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस दिया है तो ये यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस दिया तो ये यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड R। यूनिट वही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है। यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 रहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो पढ़ा था हमने बिगिनिंग में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी सर। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या बोला आपने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है। हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना भाई। वेलोसिटी कौन चेंज करेगा? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही एक्सेलरेशन होता है। ओनली दिस इज द एक्सेलरेशन फाउंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, दैट्स ऑल। अदर एक्सेलरेशंस आर मिसिंग, अदर एक्सेलरेशंस आर जीरो। अदर कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो बाकी एक्सेलरेशन सीखेंगे हम। एंगुलर एक्सेलरेशन वो अभी फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल वो 0 है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे उसको। ओनली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रहेगा, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर बोलते क्यों है इसको? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर है देखो, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। जब पार्टिकल यहाँ पे, वेलोसिटी तो इधर रहेगी, एक्सेलरेशन इधर रहेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, वेलोसिटी इधर रहेगी, एक्सेलरेशन इधर रहेगा। जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, वेलोसिटी नीचे रहेगी, एक्सेलरेशन इधर रहेगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी इधर, तो हमेशा सेंटर की तरफ।
तो बताओ ये क्या सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर है कि चेंजिंग वेक्टर है? इट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अभी जब पार्टिकल यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर है वेक्टर की, जब पार्टिकल यहाँ पे तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की। देयरफॉर इट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, यू नो। समझ में आ गया इतना? बोलो। प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली ये मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ ये सब, और डायरेक्शन के साथ तुम्हें आंसर लिखना है। बोलो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल यही एक्सीलरेशन रहता है, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। और ये इसकी वेला आगे इसका पॉइंट भी, एक दो पॉइंट और भी बताना चाह रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है? बोलो। सेंटीपीटल एक्सीलरेशन समझ में आ गया? अभी सेंटीपीटल एक्सीलरेशन मिलता कहाँ से है वो अलग इश्यू है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। जब तुम टर्न करते हो लेफ्ट या राइट, तब कहाँ से मिलता है सेंटीपीटल एक्सीलरेशन? ठीक है। और मून को कहाँ से मिल रहा है सेंटीपीटल एक्सीलरेशन? जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है कहीं ना कहीं से सेंटीपीटल एक्सीलरेशन आना चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसको कहाँ से मिलता है। जब हम गाड़ी टर्न करते हैं तो हमें कहाँ से मिलता है, लेफ्ट या राइट? सेंटीपीटल एक्सीलरेशन होगा। मोमेंट वी टर्न इट, it is a part of the circular motion, there must be centripetal acceleration. So who gives the centripetal acceleration is the different issue now, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट सेंटीपीटल एक्सीलरेशन क्या होता है वो समझ में आ गया आप लोगों को? विदाउट सेंटीपीटल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी परफॉर्म। जैसे हम थ्रेड, जब हम स्टोन को थ्रेड से बांध के घुमाते हैं, तो हम उसको सेंटीपीटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द स्ट्रिंग, थ्रू द थ्रेड। जैसे थ्रेड ब्रेक हो जाता है तो पार्टिकल इज नो लॉन्गर इन सर्कुलर मोशन, इट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पाथ, टेंजेंशियल पाथ, पैराबोला बना के गिरता ग्राउंड में जाके, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बना के, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला पैराबोला बना के। जैसे थ्रेड ब्रेक हो जाता है तो नो लॉन्गर सोर्स ऑफ सेंटीपीटल एक्सीलरेशन, तो नो लॉन्गर सर्कुलर मोशन।